हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सारे? ओके, तो आज हम इस चैप्टर में कंटिन्यू कर रहे हैं विद द न्यू टॉपिक दैट इज कॉल्ड सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स. In previous lecture we have discussed about those things, mixtures, what are homogeneous mixtures, heterogeneous mixtures, and how we can find out the concentration of solute and solvent. We can easily concentration of the solution that we have already discussed in previous chapter. If you want to watch these videos, you can view in my playlist, then you can watch them. Okay, so here we go with the separation of mixture. What is the mean by separation of mixture? Separation, what is separation? Separation means separate separate means हम किसी से अलग हो रहे हैं. Clear? जैसे at this time we have separate from schools and teachers. Teachers are separated from students. That in lockdown the students are at their homes and teachers are also their homes, and they are separate, they are not meet. So this type of situation is known as separation. When they are combined, it is called mixture. That in school the teachers and students are combined, they are called mixtures. In this, students are already present and students are already present. And in our daily life there are several types of mixtures that we have discussed some of the example. Before we have discussed separation, we have discussed some points, some examples about the mixtures. Salt and sugar and water, and milk. Okay, this type of mixture, salt and sugar, they are mixed together, but they are both are solids. They can easily separate by physical methods. Okay, they can easily be separated by physical methods because both are in solid form. Salt is solid form as well as sugar is solid form. Okay, so they can easily separate by physical method. Easily we can pick up the sugar particles and we can pick the salt particles, so we can separate them. Okay, sugar and water, there can be easily dissolved in each other, so they cannot be separated by physical method. Because they are completely dissolved in each other. They are not dissolved, they are heterogeneous mixture, but this is homogeneous mixture. They are completely dissolved in each other. That's why we cannot separate these by physical method. They are separated by chemical methods. Next, water and milk, both are liquid. If we combine these, we cannot separate by physical method. So some mixtures are separated by physical method and some are separated by chemical method. We have discussed how the mixtures are separated. So mixtures क्या है? Mixtures are separated by different methods from their constituents, from the constituent particles, they are separated by three cases. Mostly there are three cases. First, mixtures of या फिर separation of mixture of solid
मिक्स हो रहा है तो उसको हम सेपरेट करना। सेकंड, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड के अंदर अगर लिक्विड है, जैसे ये हम बात कर रहे थे, सॉलिड के अंदर सॉलिड, तो हम इसकी बात कर रहे थे। एंड देन सेपरेशन ऑफ, थर्ड होता है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, solid and liquid, this one solid and liquid. So here are the some examples that we have discussed these points regarding the separation of different kinds of mixtures. तो हम डेली लाइफ में जो हम देखते हैं कि हमारे फैमिली में बहुत सारे क्या होते हैं कि उन चीजों को सेपरेट करते हैं। मान लो गेहूं के दाने में क्या होता है, छोटे छोटे से पार्टिकल या तो स्टोन्स के प्रेजेंट है, तो हम क्या करते हैं, या तो उसको हवा में स्पिन करते हैं या फिर हम उसको छाछ होता है उसके थ्रू फटकारते हैं। तो ये क्या है, मेथड्स है कि हम फिजिकली उसको सेपरेट करते हैं। के बाद देखोगे आपने दाल में कोई कंकर वगैरह है तो उसको हम एक एक दाने को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। अगर उसमें से कोई कंकर है तो उसको बोलते हैं हैंड पिकिंग। क्या बोलते हैं, हैंड पिकिंग। तो इसी तरीके से थ्रेसिंग होता है, जैसे गेहूं होता है, गेहूं को क्या कहते, थ्रेसिंग कर, थ्रेसर होती है, तो थ्रेसर में क्या होता है, भूसा अलग हो जाता है, गेहूं अलग हो जाते हैं, और कोई डस्ट पार्टिकल है तो वो अलग हो जाता है। तो ये क्या है, डिफरेंट मेथड्स हैं, फिजिकल मेथड्स हैं। क्लियर। स्पिनिंग होता है, विंडोइंग होता है। विंडोइंग का मतलब होता है हवा में वर्षण होता है, उन चीजों को हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मोस्टली आते हैं हमारे सॉलिड, प्लस में सॉलिड्स को हम क्या कर सकते हैं, इजीली सेपरेट बाय फिजिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड्स आपके हो गए सिंपल, मैंने आपको बता लिया। इसमें आप और भी यूटिलाइज कर सकते हो, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, ये सारे मेथड्स हैं आपके कौन से, फिजिकल मेथड्स। तो इनके बारे में एक एक के बारे में हम डीपली पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसके बारे में पढ़ेंगे, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स ऑफ सॉलिड इन सॉलिड्स। क्लियर स्टूडेंट्स। सेपरेशन ऑफ mixtures of solid in solid, solid in solid. So we have discussed in this that sand and sugar, sand and sugar, they can separate it easily. We can separate them by we can dissolve some amount, we can dissolve some amount of solvent, some amount of solvent. तो with the help of solvent हम क्या करेंगे, इन दोनों में solvent ऐड करेंगे। तो जो सैंड है वो सॉल्वेंट, मान लो सॉल्वेंट में हम मान लेते हैं वाटर, वाटर में हम इसको डिसॉल्व किया सैंड को एज वेल एज शुगर को, तो जो शुगर के साथ वाटर जो पार्टिकल्स वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएंगे, बट सैंड्स के पार्टिकल्स वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर बाई चांस गलती से क्या हो गया, रेत में आपकी शुगर मिल गई, तो आप उसको कैसे सेपरेट करोगे, पानी डालो उसमें, क्या करोगे, पानी डालोगे तो शुगर क्या हो जाएगी, कंप्लीटली घुल जाएगी उस पानी के साथ, और उसको हम फिल्टर के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन में क्या होगा, जैसे हम उसको फिल्टर करेंगे, फिल्ट्रेशन से क्या होगा कि उस जो वाटर के साथ जो शुगर पार्टिकल्स थे वो मिक्स हो चुके थे, वो वाटर के साथ सेपरेट हो जाएंगे, और आपका जो फिल्टर में क्या बच जाएगी, ओनली सैंड। तो हियर सैंड इज लेफ्ट एंड sugar is separated, और शुगर को हम सेपरेट कर सकते हैं, फिर हम डिफरेंट मेथड्स यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम सॉल्यूशन बन चुका है तो उसको हम फिजिकल ना करके हम केमिकल में उसको सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर। ऐसे ही हम डिफरेंट डिफरेंट से, मान लो कोई सब्सटेंस है, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन में क्या होता है, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन में क्या होता है,
जो सॉलिड होता है डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होता है, सॉलिड टू गैस, विदाउट गोइंग टू वेपर स्टेट, liquid state. The sublimation is the process in which solid is directly converted into gas without undergoing any liquid state. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन बोलेंगे। तो सब्लिमेशन में क्या होगा, जैसे नैप्थलीन बॉल्स होती हैं, नैप्थलीन बॉल्स, कपूर की गोलियां होती हैं, आयोडीन होता है, आयोडीन होता है। अगर इसमें कोई भी डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स क्या है इसके साथ मिक्स हैं, तो जो नैप्थलीन होती है आपने देखा होगा, जो कपूर की गोली है, तो कुछ दिन बाद कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाती है, कंप्लीटली उड़ जाती है, ना वहां पे कोई लिक्विड पार्टिकल बचा होता है, कोई वहां पे निशान कुछ नहीं बचता। अगर उसमें कोई मिक्सचर प्रेजेंट होता तो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होता, वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो तो वो क्या हो जाएगा, बचा रह जाएगा। हम इसको इजीली, ऐसे आयोडीन है, इसको भी हम इसी तरीके से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अमोनियम सल्फेट है, ये भी सारे इसी तरीके से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होते हैं, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वेपर्स में कन्वर्ट हो गए तो ये वेपर्स फॉर्म में निकल जाएंगे, बचेगा क्या हमारे पास, जो मिक्सचर था उसमें जो भी हमारे उसमें इंप्योरिटीज प्रेजेंट। क्लियर, तो यहाँ पर हम बाय द सब्लिमेशन वी कैन सेपरेट। नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे थे, मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इसको समझ सकते हैं कि आपने देखा होगा जो बेगर्स होते हैं उनके पास एक लंबी सी छड़ी होती है, उस छड़ी पे क्या होता है, पीछे की साइड क्या होता है, चुंबक होता है, और उसको अपने पीछे पीछे घिसेड़ के लेके चलते रहते हैं कंटिन्यूअसली। जब उसको लेके चलते रहते हैं तो उन्हें क्यों लेके चलते हैं उसको, उसके पीछे रीजन क्या है कि अगर वो उसको लेके चल रहे हैं तो जमीन पे टच करके लेके चल रहे हैं, अगर जमीन पर कोई भी जो मैग्नेट फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो क्योंकि उसमें मैग्नेट प्रेजेंट है, तो जो भी पार्टिकल, जो भी मेटल, जो मेटल्स हैं वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो वो उसके साथ इजीली कंबाइन हो जाएंगे और उसके साथ वो चिपक जाएंगे। तो इजीली हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। मान लो हमारे पास बहुत सारा कबाड़ है, गोडाउन है, तो हम उसको सेपरेट करना होता है। तो ऐसा थोड़ी है कि हम एक ही पार्टिकल्स को अलग उठाएंगे, ये मैग्नेट है, ये हमारा लोहा है, ये हमारी प्लास्टिक है, तो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, उनका जो बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, उन इंडस्ट्रीज में क्या होता है, इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और एक टू व्हील्स होती हैं, एक व्हील्स, दो व्हील, एक इनके ऊपर क्या होती है, एक चैन होती है, उस पे क्या होता है, मान लो यहाँ पे हमारे पास कंप्लीटली मिक्सचर है, मिक्सचर है, उसको यहाँ पे कंप्लीटली, ये किसकी होती है, मैग्नेट की बनी होती है, और ये होती है सिंपल, सिंपल व्हील होता है। ठीक है, दो पहिए होते हैं, एक तो सिंपल होता है, एक किसका बना होता है, मैग्नेट का बना होता है। जो मैग्नेट का बना होगा वो जैसे ही यहाँ पे मैग्नेट आएगा वो अपने साथ चिपका कर रखता है, तब तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक मैग्नेटिक फील्ड खत्म नहीं होता। जैसे ही यहाँ मैग्नेटिक फील्ड खत्म हुआ उसने यहाँ पे लीव कर दिया, बट जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा वो कैसा आएगा, स्पीड अप होते रहते हैं, तो वो इजीली यहाँ पे आ जाएगा। जो प्लास्टिक वगैरह होती है वो कहाँ पर आके रुकेगी, यहाँ पर। जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होगा कहाँ पर रुकेंगे, यहाँ पे। तो इस तरीके से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो सॉलिड्स को हम इजीली आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि किस तरीके से हम सॉलिड्स को सेपरेट कर सकते हैं। ओके, आई थिंक ऑल गाइस लाइक माय वीडियो। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।